नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाय टू फोर कैरियर यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने नॉन आईटी कैरियर गाइडेंस पॉडकास्ट सीरीज़ का दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना कैरियर ट्रांजिशन किया है मिस इंडिया फील्ड में। क्या ब्यूटी पेजेंट साइड भी बोलते हैं उसको। वो सेकंड रनर अप भी रही हैं मिस इंडिया में अभी। और इसके साथ साथ हमने बात किया है कि कैसे उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया है और कैसे आप लोग भी पैशन फॉलो कर सकते हैं। इस आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग की गेस्ट है बलरी देशमुख। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम उनके साथ बात शुरू करते हैं। हाय बलरी, कैसी हो आप? Hi Saurav, I'm great. So I'm so happy to be on Fights Before Career and everyone who is watching this podcast and everyone who is live right now. Thank you so much for coming here. I really appreciate it. या थैंक यू एज वेल। सो जैसे कि वाइट फॉर कैरियर हम लोग पॉडकास्ट बनाते हैं कैरियर गाइडेंस के ऊपर। और तुमने अभी अभी रिसेंटली मिस इंडिया सेकंड रनर अप का प्राइज़ भी जीता है, तो हम लोग मोस्टली उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा कैरियर जर्नी जानना चाहूँगा कि आफ्टर स्कूलिंग, आई नो तुमने इंजीनियरिंग की है, तो आप बताइए थोड़ा थोड़ा कि कहाँ से इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर आपने क्या जॉब किया है, फिर कैसे आपका मन हुआ कि इस फील्ड में शिफ्ट होना चाहिए। All right, Saurav. So thank you for this question. मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन से मैं बहुत ही आर्टिस्टिक इंसान रही हूँ, लेकिन हम्म। क्योंकि मैं दो जनरेशन ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रोफेशनल्स यानी कि टीचर्स की फैमिली में पैदा हुई हूँ, तो हम्म। मुझे हमेशा ये इंस्पायर किया गया कि आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। तो मेरे पापा साइंस फील्ड से हैं, तो उन्होंने कहा कि आई वुड बी एबल टू गाइड यू इफ यू हम्म। आर taking science stream. And I think right now also there are very few girls in the STEM. So यस। that was my motivation to pursue engineering. And then after engineering I got placed in Accenture. Not after, during the college I got placed in Accenture for a software engineering role. And I decided that this role would be a good fit for me, but a better fit I got in a startup which was based in Bangalore. So it was a very new startup. It was a company which was already established in Hyderabad, but in Bangalore they had started just 6 months back. So I was really curious because I would be getting to wear many hats. I could be salesperson, I could be marketing person, I could be the creative writer for them. So all these things really inspired me, and I joined that startup. I learned many things, but at that time I thought I should probably go for further studies. So I started preparing for GRE just like every other engineer does in our country. So I scored 310 from 340. And then, due to some family reasons, because I'm a single child, so my parents were like, if you go so far away, maybe you will live there. So they were like, we will not be able to adapt to those things, राइट। which made me join Amazon. It was a walk-in drive, although it was an IT industry and one of the topmost companies to work with in the nation. List kind of role in a fraud prevention sense. So I would work on securing customers and clients and big corporations account by manually investigating the accounts so ओके। that there is no transaction related fraud. ओके। Customers have the safe platform to work on when they are working on the AWS platform. So that was my job role. After working for 3 years, I thought that maybe I should really go towards the artistic side that I wanted to in my childhood. So I left the company and I started to explore with many things. I did multiple 21 days challenges, multiple different courses that were online on Udemy, on Coursera. So these courses helped me shape up myself bit by bit. And then the opportunity came to me very much coincidentally, I would say, because
I was just scrolling through Instagram one day and I saw, do you want to learn makeup and हम्म photography skills as a model? Would you like to learn this? And I was very intrigued because, as you can see, I have a lot of passion for makeup. Not to hide the defects, but to enhance the beauty. So I thought, let's just try filling the form and see what happens. I got a call from them. They took my interview on the call itself. So I couldn't really back off. हम्म After that, there were multiple interviews which I cleared, and then the national round was there. So I had to undergo some training because okay transitioning from an IT professional to a person who is in fashion industry or who is in glamour industry, to be precise, was a difficult switch because I had no background, I had no godfathers or godmothers in this field. So I had to learn a lot. I had to unlearn first and then learn a lot. So this has been a good journey. I have participated in two different pageants and got to learn many things. Right now, I am Miss India second runner-up 2024. So I think that is all what my journey holds. Definitely other questions I would be able to answer. राइट नाइस नाइस सो जैसा आपने स्टार्ट किया आई एम नॉट रॉन्ग इंजीनियरिंग आपने बनस्थली विद्यापीठ से किया राइट जो राजस्थान में शायद हाँ जी, इंजीनियरिंग मैंने राजस्थान में हम्म जयपुर बोला जाता है, लेकिन हम्म टोंक डिस्ट्रिक्ट के पास आता है वनस्थली हम्म यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही पुरानी, बहुत ही हम्म प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। 900 एकर्स में पूरा कैंपस है, तो बेसिकली हमारी लाइफ वहीं होती थी। और वनस्थली ने मुझे बहुत हेल्प किया खुद को ग्रूम करने में। एक कैरेक्टर जो डेवलप होता है, 12th तक हम लोग मोस्टली बच्चे होते हैं। राइट उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आना होता है, जो अडेप्टेबिलिटी आनी होती है, जो लोगों के साथ काम करना, तो बेसिकली मैंने तो अपने खुद के बर्तन साफ किए, अपने खुद के कपड़े धोए हैं। बस नाश्ता मिलता था, खाना मिलता था, मतलब कुकिंग नहीं करनी पड़ती थी। बट ये सारी चीजें जब खुद से करी तो बहुत ह्यूमिलिटी आई लाइफ में कि ओके, आई शुड हैव द courage and the confidence to be able to depend on myself if I don't have people there। और वही चीज आज भी मुझे काम में आ रही है। तो मेरा जो अल्मा मटेर है, जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने जो चीजें वैल्यूज मुझे दी वनस्थली में, वो मेरे लिए बहुत ही इनवैल्यूएबल है। ये सही बात है और कहा भी जाता है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग तुम भले सीखो ना सीखो बट तुम लाइफ लेसन्स बहुत सारे सीख जाते हैं इंजीनियरिंग करते करते। ये डेफिनेटली सबके डेफिनेटली। लाइफ में होता है बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं इंजीनियरिंग करते टाइम। अच्छा जैसे अभी आप बात कर रहे थे आपने एक वर्ड लिया पेजेंट करके ब्यूटी पेजेंट तो मैं जानना चाहूँगा अभी कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडलिंग तो बताओ। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज मैंने देखा है अपनी जर्नी स्टार्ट होने के बाद कि लोगों को लगता है कि अगर आप ब्यूटी पैजेंट में जा रहे हो, लेट्स से मिस इंडिया में जा रहे हो, तो आप मॉडल हो। कई लोग मुझे मिस मॉडल बोलते हैं आज भी, इवन दो आई एम अ रनर अप ऑन अ नेशनल लेवल। सो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई देयर्स in one line, the difference in beauty pageant and modeling is, in beauty pageant you are the brand, and in modeling you are portraying the brand. So let's say there's a designer who designs clothes or bags or footwear or anything, basically watches, anything. So you are portraying their brand. You are not the brand there. So you would not possibly give those many expressions. You would not really show your personality. But in beauty pageants, you have to be a beauty. You have to have brains because you need to have an opinion. It's a job role. So wherever you are participating, in whichever platform you are participating, they will have a philosophy. And of course, by this time, if you are in your 20s, or sometimes if you are teen as well, you will also have some values, some philosophy of how you see life.
So basis that you will have certain opinions, and strong women should always have opinions is what I think. So when you have these opinions and when you have the courage to, speak out and stand for yourself and even stand for those who cannot stand for themselves, is when the beauty pageant comes in play. So there you are, a beauty, but with brains, and many platforms want you to be a beauty with brains and with purpose. So this is also the subtitle I won, apart from being Miss India second runner-up, beauty with purpose. So modeling you can do by learning how to do a catwalk, where you have to align one foot ahead of second. There has to be a lot of hip movement. So that is something where you just go, you strut your stuff, go towards the front stage, you give one or two expressions, you turn back and you come back. There is no smiling, there is no flaring of your garments, unless of course the designer wants their outfit to be shown in that light. So these are the main differences. You can pursue modeling after being a beauty queen, but I think vice versa. If you are a model, you have to unlearn some things to be a beauty queen. Right. So that is the main difference between a beauty pageant and someone who is into modeling field. राइट, नाइस। सो जैसे आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा था कि मोस्टली ये देखा भी जाता है कि जो लोग मिस इंडिया के लिए कर रहे हैं, जो जीते भी हैं, मान लो जो जीत गया कुछ पोजीशन में आया अंडर 3 और 5 में, तो वो लोग फिर आगे मूव होते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए। बट और जो स्टैक रह जाता है पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, जो लोग बचते होंगे, तो उन लोगों के क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं इसके बाद में, अगर वो नहीं बन पाए तो? ठीक है। और जैसे Lovely. आपसे ही रेफरेंस लें, जैसे आपका सेकंड रनर अप आप रहे हो, ठीक है। अब आप आके ओबियसली आगे ट्राई करोगे मिस वर्ल्ड और यूनिवर्स में, बट वो एक फेस है कि एक ईयर में आके आप उस ईयर के बन गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, मतलब उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आप डेफिनेटली मॉडलिंग इज़ अ कैरियर, बट समवन डोंट वांट गो टू मॉडलिंग, तो उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन है? आप किस चीज़ में फिर आगे काम करने वाले हो? Lovely, lovely. That's a lovely question. So, modeling एक रूट है जो हम ले सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है या एक डोर है जो हम ले सकते हैं ब्यूटी पैजेंट के बाद, बट देयर आर मल्टीपल फील्ड्स. सो आई हैव सीन मेनी पीपल गो इनटू बॉलीवुड, एज यू हैव सेड कि लोग करते हैं टॉप 1, टॉप 5 तक में आते हैं. हम लोग इंडियंस ज्यादातर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इंडिया की गर्ल्स जाती हैं और compete करती हैं, और उस बेसिस पे एक वो भारत की पहचान बना के वहां पर से आती हैं. इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री राइट नाउ इन द फील्ड ऑफ पैजेंट्स. मिस यूनिवर्स में भी लगातार चौथे या पांचवें साल हम टॉप 20 में प्लेस हुए हैं. तो जो लोग जीतते हैं, जो लोग इंडिया में जीतते हैं और फिर यूनिवर्स जाते हैं, यूनिवर्स में भी जीतते हैं या वर्ल्ड में भी जीतते हैं, उनके लिए तो स्पेक्ट्रम ही बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि उनको उस हिसाब से लाइफ मिलती है. जैसे कि मिस यूनिवर्स की बात करें तो वहां पे मिस यूनिवर्स को एक न्यूयॉर्क में अपना खुद का फ्लैट मिलता है, अपनी गाड़ी, सैलरी, ये सब सारी चीजें होती है, और इस दौरान वो एज एम्बेसडर वर्क कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म की फिलोसफी के लिए, एज आई सेड. तो जैसे मिस यूनिवर्स में होता है कि दे वर्क फॉर HIV और दे वर्क फॉर स्माइल. क्लेफ्ट जिन बच्चों को होता है, जिसके साथ वो पैदा होते हैं और स्माइल नहीं कर सकते. सिमिलरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव डिफरेंट फिलोसफी. सो मेरे प्लेटफॉर्म जो था उसमें फिलोसफी है विमेन एम्पावरमेंट. So let's say I don't want to go into modeling, I don't want to go into Bollywood. I can keep working for that cause. Women empowerment के लिए मैं आगे कोशिश करती रह सकती हूँ. मैं अपना खुद का NGO बना सकती हूँ या मैं किसी और के साथ जुड़ सकती हूँ. उसके अलावा
और भी फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, तो उसी तरीके से गेस्ट के तौर पर हम जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मॉनिटरी फील्ड, जहाँ पे अगर आप कहीं जा रहे हो एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ गेस्ट स्पीकर, or maybe as a mentor, then they will pay you. So there is financial aspect as well, how you can earn after this journey. So it doesn't have to be a 9 to 5. There are prospects of monetary benefit as well. तो इसके अलावा, if you want, or if I want, I can really start my own grooming school, or my own pageant. Like a friend of mine who I met in the last pageant has started her own platform where she's giving this opportunity to young kids. तो ये बहुत ही कम होता है। हम यूजुअली देखते हैं कि मिस फील्ड के लिए ही इंडिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है कि अच्छा मिस इंडिया, लेकिन हम नहीं जानते कि मिस टीन इंडिया भी कुछ होता है, या मिस जूनियर इंडिया भी कुछ होता है। तो मेरी जो सिस्टर क्वीन रही हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, अपना खुद का पैजेंट स्टार्ट किया है, अभी वो नवी मुंबई लेवल पे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम लोगों के लिए एम्बेसडर के तौर पे भी खड़े हो सकते हैं आगे जाके। राइट। तो देर आर मल्टीपल फील्ड्स। आई कैन स्टार्ट राइटिंग, आई कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग, आई कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। देर आर plethora of opportunities, I would say, after because ये सिर्फ एक जीतना या ना जीतना की बात नहीं है। यहाँ पे जो आप चीजें सीखते हैं वो लाइफ स्किल्स हैं। हाउ टू कैरी योर सेल्फ, how to talk, how to, address different kind of people. And that doesn't mean कि अगर कोई आपसे नीचे आता है तो आप उससे बदतमीजी से बात करें. राइट। It means that you are always humble, you are always compassionate, but you know what to say, when to say. So if you are in a diplomatic setting, you wouldn't talk about, things that you exactly think unless it is asked from you. कई बार हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जानते हैं कि उनके पास पीआर होता है जो हर चीज राइट। उन्हें बताता है कि ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो, इस समय ये करो। बट ब्यूटी क्वींस को ये सब चीजें, कैसे बैठना है, कैसे हंसना है, कैसे किसी को ग्रीट करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको अपना मेकअप करना सीखना है, बिकॉज अ ब्यूटी क्वीन has to be presentable all the time, and she should be humble, and she should be able to inspire other people, inspire a whole new generation. So I राइट। would say कि काफी डिफरेंट फील्ड्स हैं, काफी चीजें हैं। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, मान लो, ये बात मैं मोस्टली अभी तक मैंने मिस कैटेगरी या विमेन के लिए ही करी, बट कमिंग टू मेन ऑल्सो, इफ यू आर बीइंग ग्रूम्ड, इट विल शो इन वॉट एवर यू डू इन लाइफ। अगर आप जॉब में हैं, आप जॉब में एक अच्छे तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, एक अच्छे पोस्चर में बैठ रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको लाइफ में एडवांस करने में भी मदद करती हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेट्स से यू आर अ लवली होम मेकर, देन ऑल्सो यू हैव अ पर्सोना टू योरसेल्फ। जब लोग आपको रूम में एंटर करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें कुछ अलग बात है। तो डेफिनेटली द पर्सनालिटी यू हैव इज वेरी मच एनहांस्ड बिकॉज ऑफ दिस, एंड you get to learn many things, and you get to earn as well. राइट। सही कहा आपने, पर्सनालिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ नाउ डेज। सो अभी मैं, आप जैसे Yes. बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स का, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो लोग कंडक्ट करते हैं ये कॉम्पिटिशन्स, देन वी विल विन और वट एवर कॉज दे हैव, सो वी विल वर्क विद देम। सो आई वांट टू नो कि इंडिया में कौन कौन से टॉप जो प्लेटफॉर्म है जो ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, और अगर कोई समवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट तो क्या प्रोसेस है उसका, हाउ कैन दे अप्रोच देम एंड व्हाट स्किल दे शुड हैव ऑलरेडी टू गो इन दैट फील्ड। All right, all right. That's a very thoughtful question. तो मैं
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी राइट। कि अगर हम 10th में है मान लो, राइट। तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमें इंजीनियर बनना है या हमें डॉक्टर बनना है या हमें सीए बनना है या हमें लॉयर बनना है। उसके बेसिस पे और भी अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे को इंजीनियर बनना है बट मुझे आईआईटी में जाना है, ठीक है, मुझे लॉ करना है बट इस यूनिवर्सिटी से, या मतलब जैसे आईवी लीग्स के बराबर के जो इंडिया में कॉलेज हैं उसमें जाना है। तो जब मेरा ये स्पेसिफाई हो गया कि मुझे यहाँ जाना है, तो अब बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है। अच्छा, तो इस प्लेटफॉर्म में कौन भेजता है या इस लेवल का मुझे कौन तैयार कर सकता है, उस तरीके से आप करते हैं। जैसे कि अभी मिस वर्ल्ड के लिए फेमिना भेज रहा है। फेमिना एक बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है और काफी समय से चल रहा है, सब लोग जानते हैं, मैगजीन आती है उनकी, टाइम्स ग्रुप के अंडर है, तो उनके खुद के मीडिया है, जर्नलिज्म है। तो हम लोग उससे बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्टेड हैं, हम जानते हैं उसके बारे में। मिस वर्ल्ड के लिए वो भेजता है हर साल। इस साल सिनी शेट्टी जा रहे हैं, इंडिया में ही होने वाला है। और अगर हम मिस यूनिवर्स जाना चाहते हैं तो लीवा मिस दीवा भेजता है। तो वी हैव टू ट्रेस आवर जर्नी बैकवर्ड्स की, ओके। और अगर हमें इतना स्पेसिफाइड नहीं है, अगर हमें बस पता है कि ठीक है हमें इंजीनियर बनना है, तो भी हम ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है बंसल पे जाएं, रेजोनेंस पे जाएं, हम्म। ग्वालियर वाले शिखर पे जाते हैं। राइट है। तो उस तरीके से हम ये देखेंगे कि ठीक है इस कोचिंग पे जाऊंगी मैं क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है। तो राइट। आप ये देखें, और सबसे ज्यादा फिलॉसफी भी मैटर करती है। जैसे मेरे पर्सनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए मैं कंसर्न हूँ और आगे जाके भी लाइफ में काम करना चाहती हूँ, वो है विमेन एम्पावरमेंट और क्लाइमेट चेंज। तो मुझे सबसे ज्यादा सूट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे जिनकी खुद की फिलॉसफी भी इनमें से रिलेटेड हो। राइट। अगर मैं करना ये चीज चाहती हूँ लेकिन वो मुझसे एड्स के लिए पैसे या अवेयरनेस करवा रहे हैं जिसके बारे में मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता, तो मैं वैसे ही साउंड करूंगी जैसे मेरे से किसी ने क्रिकेट के बारे में पूछ लिया हो। तो सिमिलरली पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, उस बेसिस पे हम प्लेटफॉर्म चुनेंगे, वहां पे हम अपनी तरफ से पूरा सीखने की कोशिश करेंगे, जितना भी मिल रहा है एब्जॉर्ब करो। और उसके बाद कई बार आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ जाना चाहते हो एग्जैक्टली इंटरनेशनली, तो फिर आपके मेंटोर्स भी इसमें हेल्प करते हैं आपको। आप अपने तरफ से सीखो, आगे बढ़ो। अगर आप टॉप 3 में या जैसा भी उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, कुछ लोग टॉप 5 को भेज देते हैं, कुछ लोग टॉप 8 को भेज देते हैं अलग अलग जगह। तो आप उनको बताएं कि मैं इंटरनेशनल भी जाना चाहती हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट भी करना चाहती हूँ, और इसलिए आप प्लीज मुझे हेल्प करें। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था कि कौन कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यस। तो 2 का मैंने नाम ले दिया। इसके अलावा जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है उनका मैं बता सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मेरा पहला पैजेंट प्लेटफॉर्म था टीआईजीपी, ये मुंबई बेस्ड है। द ग्लैमर प्रोजेक्ट, द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट, आई एम सो सॉरी। तो ये डॉक्टर अक्षता प्रभु जो कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 है, उन्होंने और उनके हस्बैंड डॉक्टर स्वरूप पुराणिक जो कि एक एथलीट हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। और मेरा सेकंड पैजेंट जिसमें अभी मैं रेनिंग क्वीन हूँ, वो MIQH है, मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, यूजुअली दिल्ली में या नोएडा में या गुड़गांव में इसका फिनाले होता है, दिसंबर जनवरी अराउंड होता है। इसमें मिसेस इंडिया रह चुकी डॉक्टर सलोनी अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल सर, ये लोग डायरेक्टर्स हैं। और ये लोग ही आगे जाके हेल्प करते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में कईयों सालों से हैं। तो वो लोग आपको बता सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स इस चीज से जुड़ती है। बात करें अगर हम स्किल्स की कि हमें क्या क्या स्किल्स पहले से चाहिए, तो आई वुड से कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंस होती है। आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, आप में एक सेल्फ बिलीफ होना ही चाहिए। अगर आप पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो लेकिन किसी और को देख के डर जाते हो कि अरे मैं शायद नहीं जीत पाऊंगी तो मे बी मैं पार्टिसिपेट ना करूं,
तो डेफिनेटली आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म। इस माइंडसेट के साथ आप नहीं जा सकते। पैजेंट में बहुत कॉम्पिटिटिवनेस होती है, ऑल्दो सभी क्वींस एक दूसरे की सिस्टर्स हो जाती हैं एंड में, लेकिन स्टिल देयर इज अ हाई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि सब अपने आप की बेस्ट स्किल्स दिखाना चाहते हैं। सब एक अपने आप को एक जगह पहुंचाना चाहते हैं अपने अपने एम्बिशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है, वॉट एवर मे कम एंड हुएवर इज अपोजिट टू मी, आई कैन डू इट बिकॉज माई ओनली कॉम्पिटिशन इज मी। तो I would say this thing is the first thing. And the second thing which I think is very important is authenticity. कि क्या आप एक पीपल प्लीजर हो, क्या आप दूसरों के वैलिडेशन के लिए रुके रहते हो या खुद को वैलिडेट कर सकते हो। तो अगर आप दूसरों के वैलिडेशन के लिए रुके रहते हो तो यू वुड ट्राई टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल थिंक। कि और ये चीज मैं फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, which means I really like to make people around me happy. So for that, I transition myself into the version what they feel most comfortable or most happy with. But over time, I have learned कि खुद को अगर आप बनाए रखते हो एक ऑथेंटिक सेल्फ, एक वल्नरेबल सेल्फ, तो आप बेस्ट हो। और मे बी द पीपल हु आर नॉट एबल टू कोप विद दैट वर्जन ऑफ यू आर नॉट रियली मेंट टू बी इन योर लाइफ। नाइस नाइस। सो अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा था, तो जानना चाहूँगा, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, आपने इंजीनियरिंग भी की, तो जब आपने डिसाइड किया यू हैव टू गो इन दिस फील्ड, ओके, सो वाइल ट्रांजिशनिंग, सो आपको किस किस टाइप के चैलेंजेस फेस हुए और कैसे ओवरकम किया आपने, और फिर उसके बाद में डेफिनेटली फाइनेंशियल कैसे मैनेज किया। फाइनेंस इशू होती है जब आप एक सेट ऑफ जॉब कर रहे हो, आप अर्निंग हो, फिर उसका बाद एक आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो कि यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है कुछ अर्निंग के लिए, तो कैसे फाइनेंसेस मैनेजेस किए। इवन ट्रू। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा था, शायद प्रिंसिका राय ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि व्हाट इज योर ट्रांजिशन जर्नी फ्रॉम आईटी टू दिस मिस इंडिया। Yes. So my journey, as I explained in the very beginning, मैं आईटी में जॉब कर रही थी, 3 साढ़े 3 साल काम किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अपस्किल करना है खुद को। लेकिन अपस्किल इसी फील्ड में नहीं करना, कुछ और देखना है। अब वो सब कर लिया जो मम्मी पापा का मन था। 10th के बाद में इंजीनियरिंग ले ली, फिर इंजीनियरिंग पूरी हो गई, फिर उस फील्ड में भी काम कर लिया, पैसे भी कमा लिए। अब खुद का करना है, क्योंकि 20s में ही मुझे लगता है कि मैं रिस्क ले सकती थी, तो मैंने वो रिस्क लेने की कोशिश करी। तो पहले जॉब छोड़ दी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप ऐसा मत करो, आप साथ के साथ भी ये काम कर सकते हो कि धीरे धीरे मैनेज करो वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने जॉब छोड़ दी थी तो मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम था, इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे चैलेंजेस किए, जिसने मुझे और आगे हिम्मत दी और कॉन्फिडेंस दिया कि ओके, मैं कुछ डिफरेंट परसू कर सकती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही कोइंसिडेंटली ये चीज मेरी लाइफ में आई। बट फिर जो पुराना एक, आई थिंक जो भी इस जनरेशन में पैदा हुए हैं, जो भी मिलेनियल्स हैं या जेनजीज हैं, जिन्होंने सुष्मिता सेन को, ऐश्वर्या राय को, लारा दत्ता को, प्रियंका चोपड़ा को, इन लोगों को जीतते हुए देखा है ना, उनके मन में कहीं ना कहीं तो सपना था कि मेरे को भी जाना है इस, मतलब उस स्टेज पे वो क्राउन लगवाना है मुझे। तो कहीं ना कहीं से वो जो छुपा हुआ सा सपना था वो निकल के आया कि करते हैं चलो। और करते हैं चलो के चक्कर में धीरे 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 एक एक स्टेज आगे करते गए। और जब नहीं जीती मैं पहली बार में, तो बहुत दुख हुआ था कि सिर्फ सबटाइटल लेके आ गई हूँ, सिर्फ ग्लैमरस गॉडेस, जो आज मेरा इंस्टाग्राम पे नाम है, दैट ग्लैमरस गॉडेस। सो इट कम्स फ्रॉम दैट सबटाइटल विच आई वांट, ग्लैमरस गॉडेस। तो पहली बार में बहुत दुख हुआ कि यार इंटरनेशनल जाना था और अब नहीं जा पा रही हूँ, तो बुरी बात है। बट देन आई समड अप द करेज अगेन कि नहीं, कोई बात नहीं, फिर से सीखेंगे, फिर से जाएंगे, दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे और इस बार देखेंगे कि मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी से कौन अलाइन करता है। तो उस तरीके से एमआईक्यूएच मेरी लाइफ में आया। तो
ये ट्रांजिशन जो है डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस सेटबैक्स तो मुझे मिले, क्योंकि एज अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी educational background, and I have not been in sports also much, and I have definitely not learned dance. So I think dance is something which helps you a lot in this field. This year also in Miss Universe, our contestant was our Indian candidate was Shweta Shada, who is a Bollywood choreographer. So she trains Bollywood celebrities. हम्म, Uh, and when you are walking, there has to be a very feminine sway to how you are walking. And that comes with the knowledge of dance, particularly classic dance forms. If you have done Bharatnatyam, it's a very wonderful way to learn. If you have learned belly dancing, it's a very wonderful way to learn these things. When you have to finally learn ramp walk, it comes a lot into help. So for me, that was definitely a challenge, because not being from sports background, not being from dance background, I had to learn how to walk slow and have that grace in my walk, because I'm a very fast walker. तो यूजुअली लोग आते थे, पोज करते थे, इतने में मैं स्टेज से निकल जाती थी. So that was very challenging for me. And coming to the financial prospect, uh, fortunately, as I was working in Amazon, I could save up some amount. So at that time, I had some 1+ lakhs in my savings account and some 3 lakhs in my mutual funds. So I had to depend on that, because definitely in initial stages, you do not really राइट. earn much. आगे जाके जब आप आगे बढ़ने लगते हो, जब लोग आपका काम देखने लगते हैं, जब लोग आपका चेहरा पहचानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको अप्रोच करते हैं कि आप इस चीज के लिए हमारे लिए हम्म, एंडोर्समेंट करोगे क्या, या इस चीज के लिए कई बार क्या होता है कि जो मिस इंडिया होती हैं, या इवन सिटी लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे जो विनर्स होती हैं या ब्यूटी क्वींस होती हैं, उन्हें लोग बुलाते हैं कि हमारा शोरूम है, हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वुड यू बी आवर चीफ गेस्ट. तो हम्म, ये सारी चीजें जब होने लगती हैं, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से आप फ्रीलांसर हो. तो राइट. आपको कभी काम मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है. जब मिल रहा है तब आप अर्न कर रहे हो, लेकिन शुरू में मोस्टली आप, जब तक आपके और डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ अर्निंग नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है, तब तक आप अर्न नहीं करते हो. तो इफ यू आर रियली सीरियस, मे बी इफ यू आर यंग, यू कैन स्टार्ट making those passive income राइट. sources, or have something that you can rely on. But if not that, you have to have some savings, because this industry really needs you to have certain amount, because a lot goes into training, into your wardrobe, into travel, because you have to travel a lot. तो ये सारी चीजें सेटबैक्स रही मेरे लिए भी. और कहीं ना कहीं जो मैंने बोला कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से, या कॉलेज का एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से लगा कि ठीक है, कर लूंगी, करके तो देखते हैं. तो उस हम्म, वजह से चीजें होती गई. तो मेन थिंग इज पैशन. आपको पैशन होना चाहिए. अगर वो नहीं है, तो फिर आपको बहुत बड़े हर्डल्स लगेंगे, ये कि ओके, अरे मेरा तो फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है. लेकिन अगर आपको बहुत पैशन है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको लगेगा कि ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, स्पॉन्सर्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि सर, मैं इस प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट हुई हूँ, अगर आप मुझे इतना हेल्प कर सकते हो, तो मैं आपके लेट्स से आउटफिट्स, या आपके ये चीजें, आपकी ज्वेलरी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या सिटी लेवल पे, जहां पे भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, वहां पे शो जब स्टेज पे होगा, तब मैं पोर्ट्रे करूंगी. तो आपका भी फायदा है, आप मुझे हेल्प करेंगे मॉनिटरी, तो मेरा भी फायदा है. इस तरीके से हम विन विन सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं. तो ये आपकी जिद होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो. ओके. सो जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो आपने पैशन के बारे में बात किया कि जिनको पैशन है किसी भी चीज़ का करने का, तो उनको वो करना चाहिए. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ एडवाइस दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि जो कुछ एक काम कर रहे हैं, कोई, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड
आई थिंक कि मैंने जब अभी बैठ के ऑलमोस्ट 6 ईयर होने वाला है मेरे को, तो मेरे को भी कभी कभी लगता था कि अ, उस टाइम पे अगर मेरे को गाइडेंस होता तो मैं भी कुछ अच्छा और फील्ड में कर सकता था, अगर मेरे को होता तो इन दैट थॉट ऑफ माइंड मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया, बाइट फॉर कैरियर। वहाँ पे मैं डिफरेंट कैरियर के पर्सन के साथ हम्म। बात कर रहा हूँ और आई एम गिविंग एडवाइस। तो आई कैन से इट इज़ काइंड ऑफ यस। माई पैशन, और आई कैन से इससे पहले ही मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ। मेरे को नहीं पता होता था कि क्या मेरा पैशन है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे फाउंड आउट करें कि किसी का क्या पैशन है, और अगर जैसे कोई करंटली वर्किंग है जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ अलग पर्सपेक्टिव है कि मेरा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अलग है, तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब जैसा मैं बना लूँगा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसके बाद मैं छोड़ के अपना पैशन प्रॉपर फॉलो कर सकता हूँ। बट अभी साइड बाई साइड में थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस दोगे कि जो लोग चाहते हैं अपना पैशन फॉलो करना, तो हाउ दे कैन मेंटेन दिस थिंग, बोथ फाइनेंशियली या करंट ऑल राइट, वर्किंग ऑल और ऑल राइट। दीज थिंग्स। दैट्स अनदर वंडरफुल क्वेश्चन। तो हम में से कई लोगों ने डियर जिंदगी देखी होगी। डियर जिंदगी में शाहरुख खान आलिया भट्ट से बोलते हैं कि आप जब चेयर खरीदने जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहली चेयर देखी और बोला ये ले ली, ये मेरी फेवरेट है। You sit on different chairs. You try to feel how I am feeling on this chair. Am I comfortable? Do I want to sit for long hours? हम आप और मैं प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों ने आईटी फील्ड में काम किया है। हमारा 9 9 घंटे लगातार बैठने का भी काम होता है कई बार। तो हम अपने लिए चेयर खरीदते हैं। मैं अभी एक चेयर पे बैठी हुई हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत देर बैठूं, तो वो चीज मेरे लिए अच्छे से काम करनी चाहिए। तो सिमिलरली पैशन भी, अगर आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करोगे ही नहीं तो फिर आप कैसे ढूंढ पाओगे कि क्या आपके लिए सबसे कंफर्टेबल है? व्हाट इग्नाइट्स द फायर इन योर हार्ट, इन योर आईज? तो डिफरेंट कुर्सियों पे बैठ कर देखो इज व्हाट आई वुड एडवाइस, टेकिंग फ्रॉम मिस्टर शाहरुख खान। डिफरेंट कुर्सियों पे जब बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, और हो सकता है कि आप उनमें से सिर्फ एक नहीं चूज करो, आपको एक कल्मिनेशन मिले कि अच्छा, जैसे मेरे को मेकअप पसंद है, या मुझे ये चीज पसंद है, या मुझे ये चीज पसंद है। अब अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने होलसम बना के और फिर एक चीज चालू करी। जैसे इंटरनेट अभी बहुत ज्यादा है, पहले नहीं होता था। आज पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यूज हैं, वेबिनार्स हैं, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, पूरे वर्ल्ड को पहुंचने का मौका है। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। और आज जो लोग हैं, थॉट लीडर्स हैं, वो लोग अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपनी जॉब से, या फिर अपनी रीडिंग से, या फिर अपने पब्लिक इंटरेक्शन से, वो सब यूज करते हुए और फिर अपने लिए हम देखते हैं कि अच्छा, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं या ये हैं। तो आप पैशन तभी डिस्कवर कर सकते हो, वो आपके पास आएगा नहीं, चिट्ठी लिखी हुई नहीं आएगी कि तुम्हारा पैशन ये है, अब तुम्हें लाइफ में ये करना है। ये नहीं होगा। तो जब तक हम डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर नहीं करेंगे और थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम पैशन भी डिस्कवर नहीं कर सकते। और जब तक हम पैशन डिस्कवर नहीं करेंगे, तब तक आई गेस एक पर्पस नहीं आता लाइफ में राइट। कि अच्छा ठीक है ये करना है। क्योंकि जब हमें हमारा पैशन मिल जाता है तो हमें लगता है कि अब हम दूसरों के लिए भी कुछ करें, किसी भी तरीके से। जैसे बाइट्स बिफोर करियर लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा, मेरे को ये सब चीजें नहीं मिली, मुझे ये गाइडेंस नहीं मिली, मुझे नहीं पता था इतने करियर पाथ होते हैं। तो बाकी लोगों को, आगे आने वाले बच्चों को जो अभी 10th 12th पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने जस्ट कॉलेज किया है और उन्हें लगता है कि कॉलेज तो कर लिया, ये फील्ड पढ़ ली, लेकिन अब इसमें काम नहीं करना, राइट। तो वो लोग सीख पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इंजीनियर हूं और मैं आज मिस इंडिया हूं, और मैं चाहूं कि मेरे शहर में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को कहीं ना कहीं अभी भी रोका जाता है कि नहीं, ग्लैमर इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें बॉडी एक्सपोज करनी पड़ेगी या राइट। ये चीजें होंगी, तो मैं उन्हें हेल्प करूं। तो सिमिलरली जब आप अपना पैशन डिस्कवर करते हो तो आपको लाइफ के लिए एक पर्पस मिलता है कि कैसे मैं सर्व भी कर सकती हूँ। और जब जितना ज्यादा आप लाइफ में एज अ पर्सन सर्व करते हो, आप उतना ऊपर जाते हो। किसी को भी देख लीजिए, बिल गेट्स, जिन्होंने सोचा कि हर इंसान के पास कंप्यूटर होना चाहिए, आज वो बहुत अमीर इंसान है।
फेसबुक जिसने मार्क जकरबर्ग ने सोचा कि हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट कर कनेक्टेड पाए, है। चाहे कितना भी पुराना वो छूट गया है, नंबर वगैरह सब उड़ गए हैं, लेकिन वो कनेक्ट कर पाए। आज वो जिलेनियर्स बिलेनियर्स हैं। राइट तो राइट। उसी तरीके से आप जितना सर्व करते हो, जितना यू हैव टू हैव दैट सर्विट्यूड, दैट सर्वेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि मैं सर्व करना चाहता हूँ, और वो तब ही हो सकता है जब आपके पास उस फील्ड के लिए पैशन हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, could you repeat? I think I forgot the next question. पर्पस कैसे, पैशन कैसे ढूंढे, और वही सेकंड पार्ट क्या था? कि जो लोग काम करते हुए फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे वो लोग हाँ कर सकते एग्जैक्टली, हैं। exactly. जो लोग काम करते हुए करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, मैरिड लोग जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट जिनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब भी कर रहे हैं। बच्चे पालना भी एक फुल टाइम जॉब है, राइट। whether we agree or not, as children, as kids, बट हमारी ही जनरेशन के कई लोग अब पेरेंट्स बनने लगे हैं, तो वो खुद भी फील कर पा रहे होंगे ये बात। बीइंग अ पेरेंट इज अ फुल टाइम जॉब एंड इट नेवर स्टॉप्स। राइट आप बच्चे को पढ़ा लेंगे, बच्चे को नौकरी पे भेज देंगे, बच्चे की शादी करवा देंगे, उसके बाद प्रोबेबली आप बच्चे के बच्चे को भी पाल रहे होंगे। राइट। तो अगर वो लोग उस समय भी जॉब कर पा रहे हैं और अपने आप को ऊपर उठा पा रहे हैं, प्रमोशंस करवा पा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग जो अभी अपने ट्वेंटीज में हैं, हम लोगों को अगर वर्क और लाइफ का जो एस्पेक्ट हमें पैशनेट लगता है कि ये मेरा पैशन है, उसको फॉलो करना है, तो हम सबसे अच्छा और सबसे नजदीकी एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं कि कैसे वो लोग मैनेज कर रहे हैं। हम्म। तो उसको देखते हुए हम समझे कि अभी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी कम है। प्रोबेबली वी डू नॉट हैव अ स्पाउस, वी डू नॉट हैव अनदर सेट ऑफ रिलेटिव्स। अभी सिर्फ हमारे ही माता पिता और हमारे रिलेटिव्स ही हैं, अनदर सेट नहीं है, वी डोंट हैव चिल्ड्रन। सो मे बी इफ वी जस्ट ट्राई टू बैलेंस, ये नहीं कि हमेशा पुश ही करना है खुद को, हमेशा वर्क हार्ड ही करना है, बट समटाइम्स यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। बैलेंस टू लाइफ। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं डिसाइड। एंड व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू एनीवन हु आस्क्स मी दिस क्वेश्चन इज, आर यू फोकसिंग मोर ऑन अर्जेंसी और आर यू फोकसिंग मोर ऑन इम्पोर्टेंस? बिकॉज अर्जेंसी पे ही फोकस करते रहोगे तो जो चीजें अर्जेंट आती रहेंगी कि यार ये कर देना, बॉस ने मेल भेज दिया ये हो जाना चाहिए, किसी ने बोल दिया चल यार आज फ्राइडे नाइट है बाहर जाएंगे, ये सारी चीजें अर्जेंट है, बट आर यू वर्किंग ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स? आर यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स दैट विल टेक यू अहेड इन लाइफ इन 2 years, 5 years, 10 years, whatever your timeline is? And it should be always your own timeline. Don't compare yourself to others, क्योंकि वहां पे जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। योर जर्नी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जर्नी। सो जैसे भी हम जो भी चीज इम्पोर्टेंट है उसको करें, और when we say no to some things, we are already saying yes to things that are most important to us. नाउ अब मैं ये जानना चाहूँ कि हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन आवर गोल while you are pursuing this How beauty do I pageant stay goal. motivated and Yeah, focused? yeah. क्योंकि Okay, बहुत लोगों के I साथ होता most है, of the time, क्योंकि मोस्टली होता है हाँ लोगों के साथ। जैसा सबके साथ होता हाँ, है। शुरू कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे लूज होता जाता है कि फोकस नहीं होता है, फिर छोड़ देते हैं। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अगर एक दिन योगा नहीं कर पा रही हूँ, 40 मिनट के लिए नहीं कर पा रही हूँ, 5 मिनट के लिए तो कर सकते हो। ठीक। कंसिस्टेंसी हो गई। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इंस्टेड ऑफ बीटिंग आवरसेल्फ, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट दैट कि ठीक है, आज मेरी बॉडी ने मुझे अलाउ नहीं किया, इसलिए मैंने अपना योगा नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया। तो नो वन कैन बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन इज समथिंग लाइक बेदिंग। सो यू हैव टू टेक अ बाथ एवरी डे। एक दिन नहा लिए तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश ही रहोगे, अगले दिन फिर नहाना पड़ेगा।
सिमिलरली मोटिवेशन भी ऐसा ही है. Motivation and inspiration is very different. When you are inspired, you already get motivated. बट मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि कोई आएगा आप में पंप कर देगा और वो आपके पास जिंदगी भर बना रहेगा. मोटिवेशन लेवल्स गोज डाउन एंड इट्स वेरी नॉर्मल बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस दिस अलॉट कि आज हिलने का ही मन नहीं कर रहा. Some days I'm so productive. I'm meeting 4 5 people. I'm having, content posted on my socials. I am arranging interviews or appointments with people. And some days I just stay on the phone scrolling on my bed. तो मोटिवेशन इज नॉट समथिंग कि बस आ गया तो अब रहेगा हमारे पास, जाएगा वो. एंड इट्स Right. completely all right. Focus is something, as I said, when you say no to things, you are already saying yes to what's more important for you. अगर मैंने पार्टी के लिए नहीं कहा तो मैं जल्दी सोऊंगी, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है एज अ ब्यूटी क्वीन, फॉर माई ब्यूटी एज वेल एज फॉर माई Right. बॉडी टू फंक्शनल वेल. Right. तो सिमिलरली व्हेन आई से नो टू, लेट्स से, सब्सटेंस अब्यूज, then I'm probably raising my state of mind, my mindset. तो हमें कुछ चीजों के लिए मना करना पड़ता है, कुछ हार्ड रूल्स खुद के लिए रखने पड़ते हैं और उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है. मोटिवेशन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा. इंस्पिरेशन के लिए कोशिश करिए. बी इंस्पायर्ड, डोंट बी मोटिवेटेड. एंड focus is something which you get when you have your priorities straight, when you know who you are and what you want to do and whom for. Have a set of people who make you want to become the best version of yourself. तो फोकस भी खुद ही आ जाता है कि अरे, Right. किसी, जब मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जब मैं किसी गलत चीजों में फंस रही हूँ, तब मुझे लगेगा मेरे पेरेंट्स के बारे में सोच के कि नहीं, वो लोग कैसा फील करेंगे. जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आता है तो मैं खुद ही राइट काम करना चाहती हूँ, मैं फोकस्ड रहना चाहती हूँ, मैं अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना चाहती हूँ, मैं अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट को चूज करना चाहती हूँ, मैं इंस्पायर्ड होती हूँ और इसलिए मैं मोटिवेटेड होती हूँ. Nice. Nicely explained. So now I want to know from you what do you believe sets you apart from other contestants, and how do you leverage your unique background and expertise to your uh, advantages? Because you came from the software industry side and you are pursuing the beauty pageant side. So how the software industry's experience or these experiences will help you in this area? All right. So I personally think, and this is a strictly personal opinion, I wouldn't say this has to apply on everyone or everyone has to think this way, but in life, and not in just career, in life, what is more important is not hard skills but soft skills. आपको सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा फोकस होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली आज हमारे जो प्रोफेशनल पीपल हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं और उनको लगता है कि हार्ड स्किल्स ही होनी चाहिए, ये लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ये चीज तो होनी चाहिए, वो चीज तो होनी चाहिए, तभी आप एम्प्लॉयबल होगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. बट लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एक सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए. और मेरी सुपर पावर जो मैं कहूंगी वो है लिसनिंग. So even when I was working in Amazon in the IT industry, I was the connections ambassador, which means जब हम, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ ये चीज. जब हम कहीं भी शॉपिंग करते हैं, मान लो वेस्ट साइड में शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक छोटी सी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि हाउ डू यू फील, वेरी सेटिस्फाइड, हैप्पी, न्यूट्रल, माई एक्सपीरियंस वॉज बैड, ऐसे करके. तो सिमिलरली अमेजोन में हर रोज जब आप लॉग इन करते हो, हर एम्प्लॉय के पास एक फीडबैक क्वेश्चन जाता है कि आपका अमेजोन में कैसे एक्सपीरियंस चल रहा है, आपको ग्रोथ मिल रही है या नहीं, आपके मैनेजर कैसा है, आपकी टीम कैसी है, उससे रिलेटेड रोज क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 एम्प्लॉइज रेट करते हैं और एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ
उसका कल्मिनेशन एक 1 to 5 में पॉइंटर सिस्टम में रिजल्ट आता है हर टीम का। मतलब एक मैनेजर के हम्म। अंदर जितने भी लोग होंगे वो एक टीम हो गई। तो एक पूरा, जैसे मैं AWS में काम कर रही हूँ तो 5-6 टीम्स हो सकती हैं, बट हम राइट। सब साथ में काम करते हैं, लेकिन 4-5 मैनेजर्स हैं, सबके अंडर 10-12 लोग हैं। तो अब मैं मान लूं कि मेरा 5 स्कोर आया है, तो दैट इज वंडरफुल। बट यूजुअली ह्यूमंस आर नॉट अ सेटिस्फाइड स्पीशीज। हम्म। तो हमें कहीं ना कहीं सब प्रॉपर होगा तब भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो जो ये दिक्कतें होती हैं, मान लो कुछ दिक्कत है लोगों को, तो 4 स्कोर आया है, 3 स्कोर आया है, तो वो कौन सुनेगा? और वो राइट। सुन के लीडरशिप को कौन पास करेगा? ऐसा इंसान होना चाहिए जो ध्यान से सुने, हु कैन रीड बिटवीन द लाइंस, हम्म। एंड देन हु इज, आई वुड से, who has the capacity to translate it to the leadership without the ego part, राइट। कि without being rude. A bit of diplomacy is also needed, I would राइट। say. तो ये सारी चीजें आप वहां जाके किसी से उसका फीडबैक सुनोगे, आप जाके नाम नहीं बताओगे, क्योंकि दैट might probably hurt this employee when the appraisal is coming. राइट। So these things were there. I was a listener there, and I am a listener here right now. When I am a beauty queen, I have certain roles and responsibilities towards the society, towards the underprivileged, and I have to always be compassionate enough to see a person, really see them, and not just person, I would say, because humans still have some hope. Animals and trees don't. So listen to them, even if there is silence. Be able to listen. So I am a listener, and that's my superpower, and that has helped me immensely, and that is what makes me stand a lot when I am in a crowd. राइट। बहुत अच्छा कहा। आप जो बोल रहे थे लिसनिंग के बारे में, तो कल ही मैं देख रहा था एक आपने भी देखा होगा चाहे तो, सौरभ द्विवेदी करके हैं, द ललन टॉप के फाउंडर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं अच्छे। Hmm. कल उनका एक कोई रील है, उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कहीं शायद आई थिंक वो कोटा गए थे, मोशन कोटा है कहीं पे, वो बच्चों से इंटरेक्ट करे तो वो बोल रहे थे इसी के बारे में, बोल रहे थे कि लिसनिंग की सबके पास कुछ, इस दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ है बोलने के लिए, बट यू शुड बी अ गुड Hmm. लिसनर। अगर आप सुन, True. डेफिनेटली कोई आप अगर देख रहे हो, आपकी नज़र में वो उस चीज़ में अच्छा नहीं है, वो डेफिनेटली वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है, बट यू शुड बी अ गुड लिसनर। पहले आप Definitely. सुनो तो उनको कि वो Definitely. बोलना क्या चाहते हैं। तो बहुत अच्छा Everyone बोलते has a हैं। story. या ही इज़ अ माई इंस्पिरेशन। बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो फिर Lovely, lovely. इसके साथ फिर अपन मूव करते हैं। अभी जो कुछ क्वेश्चंस आए थे, और अभी जो आपके अगर लाइव पे कोई क्वेश्चन चल रहे हो तो वो भी ले लेंगे। तो अभी जो एक तो All कोई right. कोई पहला क्वेश्चन तो था, ये कोई अर्श खिजराबाद ने पूछा था कि व्हेन विल ऑडिशन हैपन इन चंडीगढ़। इट माइट बी अबाउट। Yeah, so this question I believe was about acting, and since I am यस। not really into acting, I do not know. क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्शंस होते हैं, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, क्या आप एक एजेंसी के साथ जुड़े हुए हो, वो एजेंसी आपको बताएगी कि ये प्रोडक्शन आ रहा है या ये प्रोडक्शन आ रहा है। तो एक्टिंग के बारे में आपको एक्टिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल्स से जाके जुड़ना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे आपको पता चलेगा। या फिर आप जो भी मीडिया सोर्सेस हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में देखिए अगर उसके बारे में कुछ आ रहा है। अगर आपके लोकल कोई चैनल्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जो इस चीज पे रिपोर्ट करते हैं, तो आप उन पे नजर रखिए। या आपके कोई दोस्त या कनेक्शंस हैं, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, जो आपको बता सकते हैं इस बारे में, तो आप उस पे नजर रखिए। मैं पर्सनली सही इंसान नहीं हूँ इस क्वेश्चन को जवाब राइट। देने के लिए। नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतन ने पूछा हुआ है कि हाउ डज इट फील टू बिकम अ सेलिब्रिटी। Oh, how does it feel to become a celebrity? Lovely. I think it feels almost the same because I am the same. I am the same person who was before wearing this crown, and I am the same
person after wearing this crown. Nothing has changed within. हम्म, Only the outer has changed. Only this sash is there on my chest. So, if you have your values intact, if you know who you are, then not much changes. But certainly, I have not reached the kind of heights. I have not got billions, so I cannot say कि अच्छा जब इतने अमीर हो जाते होंगे तो कैसा लगता होगा. I am not, Katrina Kaif और शाहरुख खान की अच्छा लोग बर्थडे के लिए या कुछ चीज के लिए मेरे घर के आगे इतना सारा भीड़ लगा रहे हैं. तो आई डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स, बट whatever heights I have reached by the grace of God, I don't think much has changed inside me because I am the same person and I know who I am. That's why I could be the same person. नाइस नाइस. सो एक और क्वेश्चन है, नेम स्पेसिफाई नहीं है उसमें, कि हाउ मच मनी विल इन्वेस्ट फॉर द फोटोशूट इफ समवन वांट्स टू डू फॉर फोटोशूट, देन हाउ मच मनी दे कैन एक्सपेक्ट फॉर दैट फोटोशूट. Got it. So it depends on the photographer that you are choosing, on the setting you are choosing. आप indoor shoot कर सकते हो, आप outdoor shoot कर सकते हो. डिपेंड्स कि आप किस तरीके की वार्डरोब कैरी कर रहे हो या फिर आप सिर्फ हेडशॉट ले रहे हो जो यहाँ से यहाँ तक का होता है. मतलब अभी मेरा दूसरा हाथ नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बता देती हूँ कि चेस्ट से थोड़ा नीचे तक लगभग पेट तक जो फोटो होती है, जो थोड़ा सा ज्यादा होता है अपने पासपोर्ट पिक्चर से, वो होती है हेडशॉट पोर्टफोलियो. तो वो ले रहे हो या आप फुल बॉडी फोटोज ले रहे हो, आप कितने एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल के पास जा रहे हो. मेरा फर्स्ट फोटोशूट उन्होंने किया था जिन्होंने रश्मिका मंडाना की पिक्चर्स ली हुई हैं, जिन्होंने ऋतिक रोशन की, हुमा कुरैशी की पिक्चर्स ली हुई हैं. तो डेफिनेटली दैट वुड कॉस्ट, if I was going and paying directly, that would cost a lot and I might or might not get the appointment from that person. But if you are taking the photo shoot from someone in your own city, तो वो उनका सेटअप कैसा है, उनके पास वन लाइट यूज करते हैं या टू थ्री फोर लाइट्स यूज करते हैं, बैकड्रॉप, ये सारी टेक्निकलिटीज हैं और उसी के बेसिस पे आपके पैसे कम या ज्यादा ज़्यादा हो होते हैं. सकते हैं. तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी इन लेस अमाउंट, you can expect it to be in 20 to 40K as well. Depends solely on the conditions that you are going for. अगर आपके सिटी में नहीं है और आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो कुछ चीजें डायरेक्ट आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, बट कई चीजें इनडायरेक्ट होंगी. अब जैसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको आप इनडायरेक्ट में ही गिन सकते हो, आप इसको फोटोशूट चार्जेस में नहीं गिन सकते, पर आपके पैसे खर्चा हुए नंदीलेस. तो बहुत सारी बहुत डायनामिक क्वेश्चन है ये, और आप एक बार दो चार लोगों को रीच आउट करो जिनको आप सोचते हो कि ये लोग अच्छा मेरे हिसाब का फोटोशूट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा. Nice. So, can you please check if you are getting any question in your Instagram live? Then we can All right, take all that. right. Describe yourself from Amazon to being amazing. Okay, so from Amazon to being amazing, I have been amazing all my life. I didn't become amazing after leaving Amazon, but Amazon was a beautiful period in my life. And amazing, I think, is what you become when you align yourself to your deepest core. When you know what is in this, when you follow your heart, it knows the way and it will take you that way. And if you follow, you will be unique. That is what I believe in. And then the questions, these are, I think, the questions from stories itself. How does it feel to become a celebrity? I have answered this. Yes. Then there is a person who is asking, we can't hear the other person. I'm really sorry for this because the shooting for podcast is going on laptop. So I have my earphones on and I can hear him, but you can only hear my voice because I'm Insta live through my phone.
So sorry for the inconvenience, and most welcome to watch the podcast, which will be aired very, very soon. So I hope that you will enjoy it. You will enjoy Mr. Saurav's way of questioning and listening. आई वॉन्ट टू नो वन मोर थिंग अबाउट दिस। जैसे अभी आपने जो क्राउन दिखाया और जो आप पहन, इसको क्या बोलते हैं, भूल गया। इसको सैश बोलते हैं, शैश सैश। बोलते हैं या शैश और क्राउन जो ऐसे ऐसे हर ईयर जो मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स ये होता है और हर ईयर मिलता है, तो ये क्या क्या ट्रेडिशन है? मतलब क्राउन हमको वापस करना होता है, वही पास ऑन होता है, या हर ईयर न्यू क्राउन मिलता है हर न्यू कंटेस्टेंट को? Great question. So again, it depends from platform to platform. मिस वर्ल्ड में यूजुअली पास ऑन होता है, मिस यूनिवर्स में भी पास ऑन होता है, ऑल्दो मिस यूनिवर्स अपने क्राउन सर्कुलेट कर चेंज करते रहते हैं पैटर्न। मिस वर्ल्ड का काफी टाइम से सेम रहा है, अगर आपने देखा हो हम्म। तो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है, मानुषी चिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया रह हम्म। चुकी हैं, जब वो क्राउन पास ऑन करती हैं तो उतनी ही ब्यूटीफुल स्माइल होती है उनके फेस पे जब उन्हें क्राउन मिल रहा होता है। तो शी इज स्टैंडिंग, हर सक्सेसर इज सिटिंग ऑन द सीट, एंड शी इज जस्ट पासिंग दैट क्राउन। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स में हम अपना क्राउन पास ऑन कर देते हैं। सैश डेफिनेटली पास ऑन नहीं होता, क्योंकि मेरे सैश पे 2024 लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वीन 2025 की होगी। बट ऑल्सो इट इज ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर वो आपको अलाउ करते हैं, अगर उनके खुद के प्रोटोकॉल में ये है कि हम जिस भी विनर को जो क्राउन और जो सैश और जो भी सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज दे देंगे वो उन्हीं की रहेंगी, तो फिर वैसा होता है। जिनके प्रोटोकॉल में ये है कि नहीं, हम क्राउन वापस ले लेंगे, ट्रॉफी या सर्टिफिकेट या सैश उन्हीं के पास रहेगा, तो फिर उस तरीके से होता है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिटी लेवल और स्टेट लेवल और नेशन लेवल और इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म। राइट। नाइस। So I'm done with my set of question. Okay, so in lastly I want to ask you, so हमारे दर्शकों के लिए क्या कमेंट है, आप क्या लास्ट कमेंट देना चाहेंगे? आपके दर्शकों के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मेरी बातें सुनी, इतने हम्म। ध्यान से आप एंड तक बने रहे इस वीडियो में। और इसके बाद ये भी कहना चाहूंगी कि आप डेफिनेटली बहुत यूनिक हो, क्योंकि आप में इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप किसी दूसरे से गाइडेंस ले सको। अगर वो दूसरी फील्ड का भी है तो भी आप इतनी शिद्दत के साथ देख रहे थे, मतलब आप वो 1% हो। तो अगर हम्म। आप ऑलरेडी वो 1% हो तो अपने आप को पुश करो, अपने आप को अपना ही कंपटीशन बनाओ, 1% बेटर करने की कोशिश करो, है ना। और जैसे जैसे आप खुद को बेटर करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने करियर में ही नहीं, अपने लाइफ में भी चेंजेस देखोगे। और अपने जब मैं लाइफ बोलती हूँ तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई बिलीव कि लाइफ के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फिजिकल इज देयर, जो कि मटेरियल है, वी आर ऑल मेड अप ऑफ समथिंग। then there is mental, which is very important to be in life. You have to, you have to have that survivor mentality. You have to be a fighter. तो वो एक माइंडसेट होना चाहिए। then there is emotional aspect. You have to be balanced emotionally, and this is unfortunately the time जब हम बहुत ही सारे मेंटल वेलबींग रिलेटेड इश्यूज देख रहे हैं। तो इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल वेलबींग, इफ यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज एन एसेट टू योर लाइफ। And then there is also a financial concept to life, where you have to have something in order to enjoy your life, enjoy the senses that have been given to you. So you have to have a certain level of abundance in your life. Don't live in scarcity mindset, because it will never help you. You cannot become rich with scarcity mindset. And then last thing is faith, which is the spiritual aspect. And when I say faith, I'm not talking about a certain religion, but a devotion towards the spirit that's in you. So हम्म। always you have to
keep realigning yourself to your innerst core. So if going back to my own sentence, if you are working on those things, if you are uh, being consistent, then definitely you would be great in your career, in your life, and already you are a different person because you are watching this Nice. podcast. So thank you a lot. Thank you. Thank you for giving your time. Thank you a lot. Anytime. सो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट बलरी देशमुख के साथ में। तो बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो लोग भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके, और आप अगर चाहते हैं किसी कैरियर फील्ड में मेरे से पॉडकास्ट में कोई गाइडेंस लेना, देन कमेंट डाउन दोज टॉपिक्स, मैं कोशिश करूँगा उन सब में पॉडकास्ट बनाने के लिए। सो यही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।